हाँ बस Just right here. On the left, on the left, left, left. एकदम लेफ्ट में अच्छे On से the left, on the left. Just right here, sir. On the left. चलो साइड है जाने दो. ये आदमी जिसने पैसे दे पहले Oh dearest one, Dearest we have one, only the showstopper. four cities today and लाइट नहीं लगा हमें Because you have done promotion with Akshay Kumar. करण सर चलो भाई करण सर लाइट लगा क्या बताओ तुम I'm fine. Pariniti, thank you so much for agreeing to be a part of our beautiful narrative. And as I said, you are the smile of the film and also a beautiful tear. And I think every time I see you, there is a smile on my face. And I hope you enjoyed the journey. What do you have to say to us today? I've been saying this a lot in the last 2-3 days since we've been promoting the film. That Kesari was that film where I did not think about the usual silly things like screen time and role and kya karna chahiye, kya hona chahiye ya nahi. I remember when Karan called me to the office, he told me the one-liner of this film and he played our love song that we are going to have in the film. And I said, yes, instantly. I didn't even have a full narration or anything, but I knew that all these geniuses were making an amazing film, and I just wanted to be a part of that film, so that 50 years from now, I can just say that I was a part of Kesari. That's it. I'm so happy. I told Anurag, sir, jo bhi picture bana rahe ho, I'll be a tree in the background. It's okay. I just want to be a part of it. So thank you so much, Karan, Anurag sir, Akshay sir, for making me a small part of this film, because like you said, when you were watching me, if you're feeling a smile, I was smiling throughout. Every day when I went on set and I put that dupatta on my head, I felt like the character and I was my happiest. And it's also been my biggest learning. So thank you. And अब मैं अपनी शादी में वापस जा सकती हूँ. Bilkul, bilkul. Thank you, Pariniti. Thank you for that. Very many years and, you know, worked with you through the process of making Kesari. ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि this film is very close to your heart. It's more than just a film release. It's more than just its box office potential. It's more than just, you know, the fact that we are in this business of telling stories. For you, I think this has been an emotional experience and a heartfelt one. Am I right in saying that? Absolutely right. Yeah, so would you share with us and of course all the people who love you about your journey on the film and what you feel like today? See, Karan, मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ अपने सवाल लेके आया हूं. अगर मैं अभी ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर जब ये लोग सवाल करेंगे मेरे पास जवाब नहीं होगा. तो इनसे पूछ लें. हाँ, मैं समझता हूं कि काफ़ी सबने बहुत सारी चीज़ें बोली. अगर मैं भी वही सब कुछ बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं I'll be repeating myself. तो मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बैठ जाते हैं और इनको देते हैं क्वेश्चंस करने के लिए. आई थिंक दैट बी वेरी गुड बिकॉज आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसका जवाब मैं फिर वापस दे रहा होगा. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. मैं खड़े रहता हूँ. I'll moderate it. आप बैठ इधर है ना. है अच्छा ठीक. हेलो. अपूर्वा you got a chair? अपूर्वा इधर है. हाँ जी. Ladies and gentlemen, we're opening the house to questions related to the film, of course. Please feel free to ask us anything, and I say that again with a deep amount of respect related to our film. Hi Akshay, Jyoti from Big FM. मेरा सवाल ये है जी आपके सामने है.
जी मेरा सवाल ये है कि फिल्म काफ़ी जो ट्रेलर्स है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना इमोशनली और फिजिकली कितना चैलेंजिंग था और कितना ड्रेनिंग था पूरा सिचुएशन जब आप लोग पिक्चराइजेशन कर रहे थे? ओके, सो मेरे लिए चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रिसर्च और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे डायरेक्टर ने सब कुछ करके रखा था, और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास था। करीबन 1-1.25 साल से ये कहानी पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और कई बार ये पंजाब भी गए हैं पता करने के लिए काफ़ी चीज़ें, और सब चीज़ों का उत्तर यही लेके आए। तो मैं कहूँगा कि जो चैलेंजिंग और रिसर्च पार्ट था वो इन्होंने मेरा संभाल लिया था। बाकी जहाँ रही ये फिल्म की बात, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल जर्नी रही है। मेरे पिताजी भी सोल्जर थे, आर्मी में थे, और ये भी एक कहानी उन सोल्जरों की है। मैं जब ये फिल्म कर रहा था तो मुझे बहुत अंदरूनी किस्म की अंदर से ही बहुत फील आती थी, और ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग ऐसे भी होते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 सिख, 21 सरदार एक फोर्ट के अंदर हैं, और उनको पता है कि बाहर 10,000 लोग खड़े हैं उन्हें मारने के लिए। मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने गुरुओं के लिए ये लोग लड़े जानते हुए कि क्या होने वाला है। और ऐसा लड़े कि आज अगर आप गूगल में डालो कि सबसे 5 सबसे बड़ी बैटल कौन सी है, तो हमारा नंबर 2 पे आता है। ऐसा लड़े ये लोग कि पूरी दुनिया याद रखती है। मैं बस दुख तो इस बात का है कि ब्रिटिश जो है दे सेलिब्रेट सारागिड़ी डे, बट हमारे यहाँ इतिहास के पन्नों में ये कहीं खो गई। इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिल्म भी है, इतिहास वाली फिल्म है और सच्ची कहानी है। सिर्फ हम इतना प्रभावित हो जाते हैं जब हम 300 जैसी एक फिल्म देखते हैं, हम सोचते हैं क्या फिल्म बनाई है, जबकि वो फिल्म आप सभी जानते हैं कि एक फिक्टिशियस फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई। लेकिन ये तो रियल फिल्म है, ये तो रियल लोग थे, ऐसे लोग रियल थे। तो बहुत ही एक आई कैन जस्ट टेल यू बहुत फील वाली रही है। और ख़ास करके जब इन्होंने मेरे डायरेक्टर ने मुझसे वो लास्ट के 15-20 मिनट जो फिल्म के अंदर है वो जो करवाया है, और ये ख़ास करके गाना ये लास्ट में आता है, एक वो वाली जर्नी है जब एक सोल्जर को गोली लगती है और उसके पास करीबन 30 या 35 या 40 सेकंड होते हैं, मृत्यु के एकदम नज़दीक आ चुका है। वो क्या सोचता है, वो 35 सेकंड के अंदर उसके अंदर वो सारी जो उसकी कथा होती है जो बचपन से उसके गुजरी है, माँ बाप से लेके बीवी बच्चे से सब आ जाते हैं। सो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है। ये आप जब पिक्चर देखोगे आप खुद ही महसूस करोगे। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ये लिखें कि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बच्चे ज़रूर देखें, यूथ शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन दिस फिल्म विच इज़ अ रियल थिंग। Hi Akshay, Madhu Hello. BBC Hindi se. Akshay Baji here on the left. First of all, this is Simran Singh here. First of all, thank you to the team for bringing this film, for making a film on this subject, and thank you for this emotional, heartfelt tribute to the martyrs. My question to you is a concerning question. So, your film Kesari tells us about the true meaning of this color. This is the color of sacrifice, valor, and bravery. But how doesn't bother you when you have a contemporary who is using the same color, but he has used as a product with tobacco.
So that's my question to you. I don't know. He's वो केसर और केसरी को दोनों मिक्स कर गए. नहीं, that you know, I'm not naming the brand. Yeah, I'm not naming anything. That's okay. हम से आपने ऐड बीच में पता नहीं कहाँ से ले आए. मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, भाजी तुसी कितने और चले गए हो. तो कोई गल नहीं. लेकिन भाजी I don't think like that. मैंने कभी जिंदगी में अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न मेरे पास आएगा. लेकिन कोई बात नहीं. इसके बारे में जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं सारी जिंदगी लगा लूं, मैं नहीं दे पाऊंगा. तो भाजी आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है उसका उत्तर. हाय अक्षय, बीबीसी हिंदी से मधु. सबसे पहले तो ये जब गाना हमने देखा काफ़ी इमोशनल हो गए हम लोग. उन शहीदों की कुर्बानी हमें याद आ गई. दो सवाल था. पहले तो ये जब आपने पूरा शूट किया, आपकी पूरी टीम ने पूरा शूट किया, तो क्या उस दौर से जब गुजर रहे थे आप शूटिंग के दौर पे, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अब हम सुन रहे थे तो हमें काफ़ी इमोशनल, हम कनेक्ट हो गए उस चीज़ से. बिल्कुल, ये बहुत ही इमोशनल गाना है. ये वही 35-40 सेकंड जो एक सोल्जर के जब गोली लगती है उसके ज़िंदगी में क्या होता है, मतलब उसके उस 35-40 सेकंड के अंदर वो क्या सोचता है, ये पूरा गाना वही है. एंड मैं दाद देता हूँ जिन्होंने ये गाना लिखा है कि किस हिसाब से लिखा है. मतलब वो वर्ड मैं कभी नहीं भूल सकता कि माँ कहती है तू मेरा चांद है और चांद हमेशा रहता है. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अंदर जो बहुत अच्छी तरह पिरोए गए हैं. एंड इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल जर्नी. मैम, दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से आप भारत के वीर से जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं डेडिकेट है, तो उसका भी जानना चाहेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि ये फिल्म इट इज़ ऑल अबाउट द मार्टर्स. इट इज़ अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1897 ऑन September 12th, and it is about the sacrifice what they did for the country, and that is why we have dedicated this film to Bharat Ke Veer and all the martyrs who have given their lives so that we can live our lives. करण जी, मेरा सवाल आपसे है, इसी से ही कनेक्टेड जो मधु ने पूछा. एक फिल्म मेकर होने के नाते आपसे पूछना चाहूँगी कि उरी और पुलवामा के बाद जो माहौल बना है उसमें ये फिल्म कितनी अहम है, और इस फिल्म को जो अभी माहौल बना है उसका कितना फायदा मिलेगा? अच्छे वे में पूछ रही हूँ, खराब वे में नहीं पूछ रही हूँ. देखिए, जब हमने ये पिक्चर ये प्लान की थी और बनाई थी, तो जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे थे वो माहौल था नहीं. वो माहौल हमारे देश का था, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की मिट्टी के हम हैं. ये फिल्म उसी मिट्टी से बनी हुई. इस फिल्म का दिल बड़ा है, और ये जो बड़ा दिल है ना, वो आप किसी दौर में भी आप रिलीज कर लो. अगर आप वाकई अपने देश से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, और जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस देश के लिए, अगर वो कनेक्शन आपके दिल में है, तो आपको किसी भी माहौल में ये पिक्चर रिलेट कर पाएगी, आपसे रेजोनेट कर पाएगी, और आप रिलेट करोगे और आप पसंद करोगे और आप गर्व करोगे कि ऐसे इंसान थे और आज भी हैं. तो ये माहौल की बात नहीं है, ये फिल्म की बात है, कहानी की बात है, और हिंदुस्तानी होने की बात है.